अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents from the Punjab textbook board. Previously we were discussing about the unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an embodiment of justice. He sallallahu alaihi wasallam practiced high standard of justice. For him, everyone equal before law. He decided all cases with justice and equity. To him, justice was more important than anything else. Even non-Muslims were so impressed by his justice that they brought their cases to him to decide. All through his life, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam never did any injustice with anybody. The Prophet practically applied the sense of equality and brotherhood that he sallallahu alaihi wasallam established among members of the Islamic society, even on himself. When the Messenger of Allah, peace be upon him, was inspecting the rows of the companions before the battle of Badr, the past one companion that was slightly protruding from the line, so the Messenger of Allah, peace be upon him, pushed him back to be in line with the others. As a result, the man left complaining about this and wanted to take retribution from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed the man to take retribution from him. Consequently, the companion asked the Prophet to uncover his stomach in order to retaliate. The Prophet, complying with the companion's wishes, shows how he sallallahu alaihi wasallam was a physical representation of great justice with both his relatives and non-relatives, a justice that is based on the truth and gives people their right. But all the companion did was to embrace the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and kiss his stomach. The companion wanted that to be the last thing he did before entering the battle. Therefore, the Messenger of Allah supplicated Allah for the companion to receive good. Abdullah ibn Masud said, said, during the battle of Badr, 3 of us would have one camel to ride. Abu Lubaba and Ali ibn Abu Talib were with the Messenger of Allah, peace be upon him, and it was the Messenger of Allah's turn to walk. Consequently, the other two said, we will walk instead of you and let you ride. The Prophet, peace be upon him, replied, you too are not stronger than me, and I am not in less need of reward than you. The Prophet, peace be upon him, disliked to receive different treatment from his companions and wanted to bear the same difficulties and hardship as them. Moreover, he gave this reply to make sure justice was upheld and all were treated equally. The story of the woman from Bani Makhzum who stole highlights this point. Her family sought the help of Usama ibn Zaid in order for him to intercede for them with the Messenger of Allah, peace be upon him. But the Messenger of Allah, peace be upon him, did not accept such intercession, replying with words that history has preserved for all times. What destroyed the nation before you was that if a noble amongst them stole, they would forgive him, and if a poor person amongst them stole, they would inflict Allah's legal punishment on him. By Allah, if Fatima, the daughter of Muhammad, stole, I would cut off her hand too. Muhammad sallallahu alaihi wasallam always remained fair and just all through his life. Even before his prophethood,
He sallallahu alaihi wasallam was well known for his honesty and fair dealings as a trader. The people of Makkah were highly impressed by the Holy Prophet's sallallahu alaihi wasallam fair dealing in business and trusted him. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam life is full of examples of his justice. As Muslims, we should practice the same standard of justice as our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did. So students, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise. First one is glossary. बेटा glossary के अंदर जितने भी चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिया जाता है. फर्स्ट वन इज ancestor यानी कि अबावजाद. distant relation, somebody is descended from. destitute, तंगदस्त, मस्कीन, विद नो मनी और पोजेशन. इक्विटेबल, बराबर, फेयर. फिर्म होता है पुख्ता या सख्त, डेफिनेट. फो होता है बेटा दुश्मन. एन एनिमी इन बैटल और वार. इंटरसेड, हमायत करना. टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट. मैग्नीट्यूड होता है अहमियत, इम्पोर्टेंस और इफेक्ट. ओ का मतलब होता है मकरूज हो जाना. हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी. रिवेंज, बदला लेना. समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू. सीक होता है हासिल करना, टू गेट. नेक्स्ट वन इज अबाउट द वोकेबलरी. ठीक है, वोकेबलरी का बेटा फर्स्ट वर्ड है मॉडल. तो हमने यहाँ पर उसके सिनोनिम ढूंढ कर लिखना था. तो मॉडल का मीनिंग है रेप्लिका या नमूना. पाइटी, गुडनेस. इटर्नल, एवरलास्टिंग. अर्नड, कमाना, मेक. सरमन, खुतबा, लेक्चर. रिवेंज, बदला लेना. वेंजेंस, कमांडमेंट, डायरेक्टिव. अपहेल्ड, स्पॉट. destitute, poor. Proclaimed, state publicly. Transcend, exceed. Next one is also related to the vocabulary. Choose the appropriate synonym of the following words. यहाँ पर जितने भी words हैं उनके synonym ढूंढकर correct वाले synonym उनको टिक करना है. First one is equitable and the options are fair, just and equal. So A option, fair, is correct. Second one, ancestor. Options हैं antecedent, forefather, predecessors. So the correct answer is B, forefathers. Third one, foe का मतलब हम पहले कर चुके हैं कि दुश्मन होता है. तो यहाँ पर देखें बी ऑप्शन यानी कि एनिमी. फिर्म का मतलब होता है बेटा पुख्ता यानी कि परसिस्टेंट. ग्लोरियस चमकना यानी कि स्प्लेंडिड. ठीक है, बी ऑप्शन. Next question is also related to the vocabulary. Give meanings of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने इन मतलब के मीनिंग्स में इनके मीनिंग्स लिखने हैं और उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट वन इज़ गिल्टी ऑफ यानी कि मुजरिम. culpable of guilt. So the sentence is after stealing Shoaib was feeling guilty. Second one, belong to, ताल्लुक होना, be the property of, and the sentence is this house belongs to Mehboob. Third one, exchange for, बदले में, meaning is give or receive for in place, and the sentence is we have new chemistry teacher, exchange for old one. Fourth one, in accordance with, के मुताबिक, according to, and the sentence is complete your homework in accordance with your teacher instructions. Next question D, translate paragraph 1 of the lesson into Urdu. पैराग्राफ चैप्टर का जो पैराग्राफ 1 है उसका उर्दू में तर्जमा करना है. सो यहाँ पर तर्जमा दिया हुआ है बेटा फर्स्ट पैराग्राफ का. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल हैं जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, पाकीज़गी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात अक़दस से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबा ज़िंदगी में पैरवी के लिए अपने अमली नमूना से नहायत आला और शानदार मेयार कायम फरमाए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन. फर्स्ट वन, एनालाइज द पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है. फर्स्ट वन,
In paragraph 1 dash details of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam characteristics are given. पैराग्राफ 1 में आप वसल्लम की कौन सी खसूसियात बयान की गई हैं? ऑप्शंस हैं ए जनरल, बी स्पेसिफिक एंड सी क्रोनोलॉजिकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए जनरल. सेकंड वन, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट. पैराग्राफ 2 का क्या आइडिया है? सो द करेक्ट आंसर इज सी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was just and fair even before his prophethood. So correct answer is C. Third one, examples given in paragraph 3 and 4 shows that. हाँ जी, पैराग्राफ 3 और 4 में जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो क्या बयान करती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज़ ए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a just head of the state. फोर्थ वन, पैराग्राफ 5 shows that. पैराग्राफ 5 जो है वो हमें क्या बताता है? सो द करेक्ट आंसर इज़ द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स. सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. फिफ्थ वन, टू होम डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस. When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is the most likely that you will know the truth. तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये एडवाइस की थी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट अबाउट द ग्रामर. यहाँ पर दो टेबल्स बने हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ कंक्रीट नाउन एंड सेकेंड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कंक्रीट नाउन क्या होता है? द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन on his son. The underlined words are concrete or material nouns since they refer to concrete things. जो अंडरलाइन वर्ड हैं बेटा वो क्योंकि गैर मादी चीज़ें हैं, चूँकि वो मादी चीज़ों का जिक्र करते हैं, इसलिए जैसे कि बाप का इंतकाम जो है उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता, तो फादर एंड सन, ठीक है, ये कंक्रीट नाउन्स हैं, जैसा कि जिनको हम अस्माए मादा भी कहते हैं, जो कि मादी चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहे हों. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? गैर मादी इसम, जैसा कि ही डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस. तो ये इक्विटी और जस्टिस इन दोनों को अंडरलाइन किया गया. ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करे बल्कि एक वैल्यूज़ हैं ये. ठीक है. नाउ क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू द कॉम्प्रीहेंशन. फर्स्ट वन ए, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती पहलुओं में दर्जा कमाल कैसे हासिल कर सकते हैं? एंड द आंसर इज़ पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ इन द फाइट ऑफ द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लोग जो हैं ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम और हयात मुबारका से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. सेकंड, how did the holy prophet sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideas for all mankind. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नस्ल इंसानी के लिए आला और अरफा और शानदार नमूने कैसे कायम किए? एंड द आंसर इज़ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियाज through his practical examples for all mankind to follow in every field of life. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम उनकी ज़िंदगी की अमली तस्वीर को देखते हैं या अपनी अमली मिसाल के ज़रिए बरीन इंसान के लिए आला और शानदार तस्वुरात कायम किए, वो ख़ुद जो वो करते थे उसकी तबलीग फरमाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुड. मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल हो गए? एंड द करेक्ट आंसर इज द पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड. एज अ यंग ट्रेडर he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all peoples. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत से कबल भी दीगर लोगों के साथ अपने लेन देन में इंसाफ पसंद और खरे थे, लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल हो गए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में भी जो थे वो इंसाफ पसंद थे और हर तरह से इंसाफ से काम लेते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What standard of justice did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam practice as head of the state of Medina? मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के किन मयारों पर अमल पैरा हुए? And the answer is, as head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed और race. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हर कोई कानून में बराबर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग, मसलक या नस्ल से कतई नज़र तमाम मुकदमात का खुश असलूबी से अदलो इंसाफ के साथ फैसला फरमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? किस बात ने गैर मुस्लिमों को अपने मुकदमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने पर मजबूर किया? एंड द आंसर इज़, non-Muslims were highly impressed by the high standard of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam justice, so they brought their suit to him. नबी गैर मुस्लिम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के आला मेयारों से इंतहाई मुतासिर थे, लिहाजा वो अपने मुकदमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुरान जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कैसे बयान करता है? एंड द आंसर इज़, द होली कुरान सेज, वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ गॉड अ गुड एग्जाम्पल फॉर एनीवन हु होप्स whose hope is in God and the final day. कुरान फरमाता है, हमारे पास बिलाशुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत से उम्मीद है या उम्मीद रखता है बेहतरीन नमूना है। So students, next question is about the grammar. Identify whether each underlined word is a concrete or an abstract noun. जो underlined words हैं वो आपने बताने हैं कि concrete हैं या abstract noun है। First one, she puts in much effort into her studies as she wants to score good marks. यहाँ पर बेटा देखें effort और study इन दोनों को underline किया गया। ये दोनों वर्ड जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये कोई मादी चीज़ नहीं है बल्कि ये गैर मादी चीज़ें हैं, तो इसको हम अंडरलाइन कर इसलिए इनको अंडरलाइन किया हुआ है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। सेकंड, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। देखें यहाँ पे जस्टिस और ट्रूथफुलनेस ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गैर मादी हैं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो हम यहाँ पर भी ए लिखेंगे। कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट, बॉल और बास्केट इन दोनों को किया हुआ अंडरलाइन, तो ये दोनों कंक्रीट ऑब्जेक्ट है यानी कि कंक्रीट नाउन है, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। फोर्थ वन, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज़ लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर, तो यहाँ पर ट्रेडर और कस्टमर ये दोनों जो हैं ये कंक्रीट नाउन है। सी, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट, अंडरलाइन वर्ड इज़ केयर, और जो केयर है बेटा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Students, next question is also related to the grammar. Choose whether each sentence needs an indefinite article a and a definite article the or no article. चूज़ करना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में a, n और the इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज़ होता है। फर्स्ट वन, ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वॉज ईजी, सो यहाँ पर आएगा दी। थर्ड वन, हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यानी कि कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। फोर्थ वन, कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट, तो यहाँ पर आएगा द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल। फिफ्थ वन, इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, तो यहाँ पर आएगा अ, ठीक है, इनडेफिनेट है ये। सिक्स वन, डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पर आएगा द। सेवंथ, आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा कोई आर्टिकल भी यहाँ पर सूटेबल नहीं है, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। एट्थ वन, डैश यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, द स्पेसिफिक है ना, तो यहाँ पर द आएगा। नाइन्थ वन, आई विल सी यू इन डैश वीक, ठीक है, इन आ वीक। टेंथ वन, लास्ट वन, आई एम ऑन डैश वेकेशन अनटिल मंडे, तो यहाँ पर भी कोई भी जो है वो सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई भी नहीं आएगा आर्टिकल। नेक्स्ट वन, नाउन फ्रेज
A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. नाउन फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा ग्रोह है जो इसम का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, एज अ यंग ट्रेडर ही अर्नड द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. एक नौजवान ताजर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, खरे और मुनसिफाना कारोबारी शख्स के तौर पर शोहरत हासिल की. तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या हैं? नाउन फ्रेज हैं. ठीक है. There is a question related to the noun phrase. Underline the noun phrase in the following sentence. ये जो सेंटेंस दिया गया इसमें से जो नाउन फ्रेज था उसके नीचे अंडरलाइन कर देना था. तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के नीचे कर दिया है. फर्स्ट वन, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट. तो यहाँ पर ओल्ड फैशन का जो वर्ड है ये नाउन फ्रेज है. सेकेंड वन, वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान. तो यहाँ पर फहद्स प्लान जो है ये नाउन फ्रेज है. थर्ड वन, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस. रोलिंग स्टोन नाउन फ्रेज है. फोर्थ वन, the recent flood caused heavy damage. heavy damage noun phrase है. fifth one, an oral presentation can be interesting. तो oral presentation जो है ये noun phrase को represent कर रही है. next question is related to the tenses past indefinite and past continuous tense. हाँ जी, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, fill in each blank with past indefinite और past continuous tense of free of the verb in bracket. यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं उनकी मदद से हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के हिसाब से. फर्स्ट वन, व्हाट डैश यू डू व्हेन आई डैश कॉल यू लास्ट नाइट. तो यहाँ पर बेटा अगर हम पास्ट कॉन्टीन्यू के हिसाब से करें तो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन, मैं बोलती जा रही हूँ आप करते जाएं इसको नोट डाउन. व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई, कॉल की जगह पे कॉल्ड आ जाएगा. ठीक है. थर्ड फॉर्म, called you last night. second one, I dash sit in the cafe when you dash call me. so I was sitting, ठीक है, past continuous, was sitting in the cafe when you called me. third form call की called me. 3, when you dash at the bus stand who dash be there. तो यहाँ पर बेटा हम यहाँ पे अराइव की थर्ड फॉर्म लगा देंगे. व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वॉज देयर. ठीक है, यहाँ पर वॉज आ जाएगा इंडेफिनिट के लिए. फोर्थ वन, शम्सा डैश वॉच अ फिल्म व्हेन शी डैश द नॉइज. शम्सा वॉज वॉचिंग पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस अ फिल्म व्हेन शी डैश हर्ड द नॉइज. हर्ड. ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई. फिफ्थ वन, वी डैश tennis when Javed dash his ankle. We were playing past continuous tense tennis when Javed hurt in ankle. hurt की थर्ड फॉर्म भी hurt होती है तो यहाँ पर hurt in his ankle. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ई, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ. पैराग्राफ दिया गया इसको पंक्चुएट करना है. यहाँ पर देखें बेटा जो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ आप निशान लगाते जाएं. ड्यूरिंग का डी जो है ये कैपिटल आएगा. ड्यूरिंग द सरमन इसके बाद आएगा कोमा. यहाँ पर एन अंसारी, अंसारी का ए कैपिटल आएगा. सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सैड. सैड के बाद कोमा आ जाएगा. ठीक है. ओह का ओ जो है वो कैपिटल आ जाएगा और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज आ जाएंगे. ऊपर इसके इन्वर्टेड कोमाज आ जाएंगे. ओह मैसेंजर, मैसेंजर का एम कैपिटल आ जाएगा. ऑफ अल्लाह, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा अल्लाह के बाद ऐसे. देयर का टी जो है ये कैपिटल आ जाएगा. देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. फैमिली के बाद बेटा फुल स्टॉप आ गया और वी का जो डब्ल्यू है ये कैपिटल आ जाएगा. वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर डैट. डैट के बाद फुल स्टॉप आ गया. ठीक है. और यहाँ पर फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमास लगाकर इसको ख़त्म कर देना है. फिर दी का टी कैपिटल आ जाएगा. हॉली का एच कैपिटल. ठीक है. रिप्लाइड द रिवेंज, रिप्लाइड के बाद आ जाएगा कोमा. उसके बाद
द का टी कैपिटल और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास आ जाएंगे। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, यहाँ पर फुल स्टॉप लास्ट में और इन्वर्टेड कोमास से इसको हम बंद कर देंगे। बेटा आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जितनी भी हमने ग्रामर की है, सेंटेंस फॉर्मेशन किया है, वोकैबुलरी की है, बेटा आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। यह आपका होमवर्क है कि आपने इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस घर पे करनी है ताकि आपको इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।